ہوتی تھی مگر اب تھوڑا سا اس کا پریشر بڑھ گیا ہے لگتا ہے۔ نمبر ایک، پیسے والا بننا ہے۔ نمبر دو، منصب مل جائے، بڑا عہدہ مل جائے۔ نمبر تین، شہرت مل جائے۔ یہ تین چیزیں پہلے بھی لوگوں کی نظروں میں بڑی میٹھی میٹھی ہوا کرتی تھی، اور اگر درست طریقے سے ملے تو اس کا ٹاپک ہی بالکل الگ ہے۔ یعنی اگر پیسہ ملے اور پورا پیسہ حلال ہی کا ہو، حرام اور شبہے کا مال اس میں نہ ہو، شہرت ملے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اگر ملتی ہے اور اللہ ہی کی طرف سے اگر شہرت ملتی ہے، یعنی یہ دو چیزیں الگ ہیں۔ ایک ہے شہرت کا چاہنا اور ایک ہے اللہ کی طرف سے شہرت کا ملنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ اور تیسری چیز ہے منصب۔ اگر دیکھیں نا تو یہ تینوں چیزیں غیر مسلموں کے پاس بھی ہوتی ہیں، مسلمانوں کے پاس بھی ہوتی ہیں۔ کیا یزید کی شہرت نہیں ہے؟ یعنی برو لوگوں کے پاس بھی ہوتی ہیں، فاسق و فاجر کے پاس بھی ہوتی ہیں، اللہ کے نافرمانوں کے پاس بھی ہوتی ہیں۔ فرعون کے پاس منصب بھی تھا، فرعون کے پاس اقتدار بھی تھا، فرعون کے پاس دولت بھی تھی، اور فرعون مشہور بھی ہے۔ اس لیے ہر شہرت اچھی نہیں ہوتی، شہرت پر ہوتا ہے۔ شیطان کتنا مشہور ہے، بچہ بچہ جانتا ہے شیطان۔ تو ہر شہرت اچھی نہیں ہوتی، ہر دولت اچھی نہیں ہوتی، ہر منصب اچھا نہیں ہوتا۔ لہذا جب بھی شہرت کی، منصب کی، دولت کی، اس طرح کی جب بات کی جائے گی تو اس میں یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ وہ چیز اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اتنی بات ضرور یاد رکھیے گا، ورنہ تو قارون کے پاس بھی دولت تھی، ایسا تو نہیں کہ قارون کے پاس دولت نہ تھی۔ تو ہر دولت اچھی نہیں ہوتی۔ دولت حضرت عثمان غنی کے پاس بھی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دولت حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس بھی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں صحابی ہیں، دونوں عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ تو دولت ہے تو دولت ہے کیسے؟ اگر شہرت ہے تو شہرت ہے کیسے؟ اور اگر کوئی منصب، عہدہ یا اقتدار ہے تو وہ ہے کیسے؟ میٹر یہ کرتا ہے، میٹر صرف یہ نہیں کرتا کہ یہ ہے بس مل جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں پیسہ آنا چاہیے چاہے کہیں سے بھی آئے، کہیں سے کیوں آئے؟ اگر پیسہ آنا چاہیے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق آئے۔ آدمی پیاس بجھانے کے لیے شراب تو نہیں نہ پیے گا، پیاس بجھانے کے لیے تو پانی پیے گا نا۔ اب بولے یار پیاس بجھنی چاہیے، شراب پیو یا پانی پیو، تو اس کو آدمی کیا بولے گا؟ منصب آنا چاہیے چاہے صحیح طریقے سے آئے غلط طریقے سے آئے، تو یہ بات تو نہیں ہوئی۔ لہٰذا جب بھی منصب کی، دولت کی، شہرت کی اور اس طرح کے دیگر ٹاپکس پر بات کی جائے گی تو ایک مسلمان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان تمام کے لیے اگر ہم کوشش کرتے بھی ہیں، یعنی ہر جگہ ان چیزوں کے لیے کوشش کرنا کوئی پسندیدہ نہیں ہے۔ امیل سنت کا رسالہ ہے جس کا نام ہے غریب فائدے میں، کبھی یہ رسالہ پڑھ لیں آپ۔ کون سا رسالہ ہے؟ سارے مل کے بولیں کون سا رسالہ ہے؟ غریب فائدے میں۔ ہاں، میں نے ہمارے دادا پیر حضرت سیدنا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ مدینہ منورہ میں جن کا انتقال ہوا، امیل سنت کے پیر صاحب کا نام ضیاء الدین مدنی ہے، قطب مدینہ ان کو کہا جاتا ہے۔ میں نے ان کا ارشاد پڑھا، میں نے پھر اپنے پاس محفوظ کیا۔ یہ فرماتے ہیں کہ دولت کی مستی سے خدا کی پناہ مانگو۔ کیا فرماتے ہیں؟ دولت کی مستی سے خدا کی پناہ مانگو، اس سے بہت دیر میں ہوش آتا ہے۔ واقعی بہت قیمتی اور بڑا پرائس لیس مدنی پھول ہے۔ تو اب اس دور میں بھئی یہ چل پڑا ہے، حالانکہ دعوت اسلامی کا اگر آپ مدنی ماحول دیکھیں، اس طرح کئی عاشقان رسول کی اگر آپ باتیں سنیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان مسلمان متقی بننے کی بھی خواہش ظاہر کرتا ہے، نیک بننے کی خواہش ظاہر کرتا ہے،
پرہیزگار بننے کی خواہش ظاہر کرتا ہے. یہاں پڑی نہیں ہے کسی کو، بدقسمت پڑی نہیں ہے. یعنی ایک شخص بے روزگار ہے تو بڑے اب ٹینشن میں، مگر وہ بے نمازی تو اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. ایک شخص کے پیچھے ایک شخص پر قرضہ چڑھ گیا ہے، بڑا ٹینشن میں. اس پر گناہوں کا بوجھ چڑھ گیا، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. کوئی بھی مطلب جو میں عرض کر رہا ہوں، چاہے وہ مذہبی ماحول میں ہو یا نہ ہو، پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا نہیں ہے، یعنی جو میں عرض کر رہا ہوں وہ illogical، وہ مطلب غیر واجبی تو غالباً نہیں ہے. ایک لوجیکل بات آپ سے کر رہا ہوں، کیونکہ مرنا تو ہے نا. بندہ دولت کے پیچھے بھاگے، بندہ شہرت کے پیچھے بھاگے، بندہ منصب کے پیچھے بھاگے، مگر اس کی موت کی منزل کب آ جاتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے. موت کی منزل آگے اٹھا کر کے قبر میں اتر گیا. اب یہ جتنی بھی شہرت کی یا دولت کی یا منصب کی جتنی اس کی خواہشات، اس کے جو ایمبیشنز تھے، ایم آف لائف جس کو اس نے بنایا ہوا تھا، وہ سب کے سب زمین کے اوپر رہ گئے. چلتے 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 اچانک صحیح، مگر ایک وقت آئے گا کہ وہ ٹھا کر کے قبر میں گر جائے. گڑا ہے، گر گیا، ختم. اب جو اوپر تھا اوپر رہ گیا، اب یہ جو اس کے ساتھ جو نیچے گیا وہ نیچے چلا گیا. یہ جو چیزیں ہیں نا، اس کے بارے میں ہمیں بہت سنجیدہ رہنا ہوگا کہ ہم نمازی بنے، نیک بنے، متقی بنے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بنے. ہمارے یہاں لوگ اگر کسی کو انگلش کا پیپر دے دیا جائے، کوئی بھی لیٹر دے دیا جائے، پرچہ دے دیا جس پہ انگلش پہ لکھا ہو، کہیں اس کو پڑھیں تو اس کو شرمندگی ہوگی، یار پڑھ نہیں سکتا، یار کیا ہے یہ. اس کو نہ پڑھنے پر شرمندگی ہو رہی ہے، اس کو نہ لکھنے پر شرمندگی ہو رہی ہے. اب وہ لکھیں، بعض لوگ سائن کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، وہ لکھتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یار ہم کو لکھنا نہیں آتا، ہماری بے عزتی ہو جائے گی. ہوتے ہیں ایسے لوگ. مگر اسی کے ہاتھ میں اگر میں قرآن دیتا ہوں کہ پڑھو، اس کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، شرمندگی ہوتی ہے؟ احساس بھی نہیں ہے، اس کو نہیں آتا قرآن پڑھنے کے لیے. تو وہ اپنے آپ کو بالکل اس کا ویژن، ہمارے بدقسمتی کے ساتھ بڑی مسلم کمیونٹی کا، بہت بڑے طبقے کا، اس میں اسپیشلی ہماری کالجز، یونیورسٹیز اور اسکول اور اس طرح کی جو ہائرلی ایجوکیشن سیکٹر ہیں اور اس طرح کے بعض پروفیشنل سیکٹر ہیں، اس کے اندر یہ بڑا پرابلم ہے کہ وہاں پر کروڑوں مسلمان ہیں. جو مجموعی طور پر بات کروں تو کروڑوں مسلمان ہیں. اب ان تک اللہ کرے ہماری یہ بات پہنچے کہ مین مقصد کیا ہے ہمارے زندگی کا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ ہمارا قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہمیں عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا. تو اللہ تعالی ہمیں عبادت کی سوچ، عبادت کا ذہن عطا فرمائے. دنیا میں رہنے کے لیے، دنیا میں جینے کے لیے، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پیسہ چاہیے. میں نے کہا نا کہ جو بغیر خواہش، ایک تو ہوتی خواہشیں، تو خواہش نیک بننے کی کیوں نہیں؟ ہم خود ونوے ہیں. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں مولانا کو، مولانا، اے مولانا، ہاں کیا ہے، اے مولانا، ہاں ارے کچھ دنیا کا تو کرو. کیا کہتے ہیں مولانا کو؟ اے مولانا کچھ تو دنیا کا کرو. تو مولانا دنیا کا کیا کرے؟ مولانا کما رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے کما رہا ہے، مولانا کی شادی وغیرہ بھی ہو گئی ہے، گھر بار بھی ہے، تو مولانا دنیا کا کیا کرے؟ تو جو مولانا کو دنیا کا کرنے کا کہتا ہے نا، اس کو کہو کہ تم دین کا کچھ کرو، تم نمازی بنو، پرہیزگار بنو، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف آؤ. صلو علی الحبیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. مفت کا ثواب ملتا رہے گا جب تک مسجد میں رہیں گے.
याद रखिए, मस्जिद के अंदर खाना पीना, सोना, साहरी, इफ्तार, आब जमजम शरीफ पीना, दम किया हुआ पानी पीना, नियाज खाना वगैरह उसी सूरत में जायज होते हैं, जबकि पहले से एहतिकाफ की नियत की हुई थी। अब इफ्तारी सामने आ गई, एहतिकाफ की नियत नहीं की थी, तो अब मस्जिद में इफ्तारी नहीं कर सकते। अलबत्ता सवाब की नियत से एहतिकाफ की नियत कर लीजिए, कुछ जिक्र दुरूद कर लीजिए, चाहे तो बार बार दुरूद पाक पढ़ लें, आप भले इफ्तारी कर लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, रिसाला ज़ियाए दुरूद सलाम, पेज नंबर 4, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नंबर 11। जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ और मोहब्बत के सबब 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक पर हक है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला। सवालत कीजिए, हर सवाल का जवाब अभी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये जरूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाए, मुझे आए बाय शाएं करता अपने मौके पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे। आज 1440 से हिजरी के माह रमज़ान मुबारक की का 8वां रोज़ा है। असर पढ़कर आशिकाने रमज़ान आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में जमा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला सल्लल्लाहु अमील सुन्नत के फेसबुक पेज पर जो सवाल है उसमें ये आया है कि कुरान करीम में जो सजदे हैं तो क्या वो लाजमी अदा करने हैं? इसके शराइत के साथ वाजिब है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शराइत से मुराद जैसे कि आपने वो आयत मुबारक पढ़ी या सुनी, फिर इसके मजीद भी मसाइल है। तो अब आयत, जैसे कि अब मस्जिद में नमाज हो रही है, आयत पढ़ी जाती है, तो इमाम साहब सजदा तिलावत करते हैं, आप कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, आयत सजदा आपने पढ़ी, तो ये सजदा आप पर वाजिब हो गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सर में तेल लगाने से रोजा टूट जाता है? सर में तेल लगाने से रोजा नहीं टूटता, चाहे दिन को लगाए, चाहे दोपहर को लगाए, चाहे असर के बाद लगाए, बिल्कुल नहीं टूटता, मकरूह भी नहीं होता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं अहमदपुर शर्किया से मोहम्मद जहांगीर बात कर रहा हूँ, और मेरा आपसे ये सवाल है कि मेरी उम्र मुबारक 15 साल है और मेरे बाल, उछार के बाल जो हैं वो सफेद हैं, और मैं कहीं जाता हूँ तो मेरे मजाक उड़ाते हैं लोग, मुझे कहते हैं कि इतनी जल्दी बूढ़े हो गए, तो मैं उनको क्या जवाब दूं? बाल मुबारक आपके सुनहरे, ये कहा 15 और बाल सफेद, ये तो फिर इनका कलर भी, वो जो जिसको भूरा कलर बोलते हैं, तो जिनके भूरा कलर होता है उनके बाल सफेद होते हैं। ये अल्लाह ताला की मर्जी है, अल्लाह की रजा पर राजी रहें। एक बहुत बड़े आलिम दीन हुए जो अभी दुनिया से रुखसत हुए, आला हजरत के खानदान के ताजुल शरिया मौलाना अख्तर रजा खान साहब, इनका रंग भी भूरा था, बाल भी इसी तरह के सफेद या ये मतलब भूरे टाइप के थे। तो बहुत बड़े आलिम थे, दुनिया की मशहूर शख्सियत है। तो ये कि दिल पर लेंगे और आप एहसास महरूमी का शिकार हो जाएंगे तो आगे तरक्की करना मुश्किल हो जाएगा। नथिंग, अल्लाह की रजा पर राजी रहे, अल्लाह चाहे आप भी बहुत बड़े आलिम दीन बन जाए, घबराने की जरूरत नहीं इसमें, जैसा अल्लाह ने बनाया है। बज़ाहिर लगता नहीं कि रंग भूरे होने की वजह से कह रहे हो, ये कह रहे थे कि उम्र मुबारक मेरी 15 साल है और बाल अभी से सफ़ेद हो गए हैं तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। ये मतलब मेरा गुमान है कि शायद इनका रंग भूरा हो, तो इनके सफ़ेद होते हैं। आमतौर पर 15 साल की उम्र में बाल सफ़ेद होते नहीं है किसी के, अगर ये हुआ है तो ये आलम की अजाइबी है। नज़ले की वजह से सफ़ेद बाल हो जाते हैं, इक्का दुक्का हो जाए, पूरे बाल सफ़ेद। बहरहाल ये कि आप घबराएं नहीं, और इसको अगर करना है तो लाल कर लें, काला नहीं करना, लाल रंग कर लें, मेहंदी लगा लें, वरना ऐसे रहने दें, कोई मसला नहीं। आप आदी हो जाएंगे, लोग
मजाक करते रहेंगे, अल्लाह इनको हिदायत दे, इनको भी माफ कर दे बेचारों को। लोग मजाक उड़ाते हैं, गुनाह है किसी मुसलमान का दिल दुखाना, मजाक उड़ाना। तो जो करते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहम्मद जफ़र अतारी, इटली के शहर विचेंजा से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा अमीर अहले सुन्नत दामद बरकात मालिया से सवाल ये है कि एक इस्लामी भाई के यहाँ 2 बच्चियाँ पैदा हुई हैं, तो उन्होंने एक का नाम सफ़ा और दूसरी का नाम मरवा रख दिया है। क्या उनका ऐसे नाम रखना जायज़ है? शरई रहनुमाई फरमा दीजिए। जायज है, सफा मरवा की याद है इसमें तो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मस्जिद जी चलाइए। मेरा मीडिया सुनने से ये सवाल है कि अगर किसी से झूठा वादा किया हो और बाद में इसका एहसास हो कि मैंने गलत किया, तो तौबा करने से गुनाह माफ हो जाएगा या उस शख्स से माफी मांगनी होगी? हक्कुल अब्द इसमें है, बाद सूरतों में होगा, बाद सूरतों में शायद ना हो। अब इसमें जाहिर है कि देखना ये होगा कि उसमें बंदे की हक तलफी भी है या नहीं। तौबा तो बहर सूरत फर्ज है इसकी, तौबा करे, लेकिन अगर उसका हक भी तलफ हुआ है, मिसाल के तौर पर उसको बुला लिया कि वो फला जगह तुम खड़े रहना, मैं आ रहा हूं, अब वो बेचारा इंतजार करता रहा, बोर होता रहा, परेशान होता रहा, तो एक मुसलमान को अपनी तकलीफ थी, उसको परेशान किया, तो अब उससे माफी भी मांग ले कि मैंने आपको तकलीफ दी थी, मेरी कोई आने की नीयत नहीं थी, खामा का मैंने आपको तंग किया था। तो ऐसा कोई भी हक्कुल अब्द, बंदे का हक भी तलब होता है तो बंदे से भी माफी मांगनी होगी, वरना यह कि सिर्फ तौबा काफी। आपने पिछले एक मदनी मुज़ाकरे में ये फरमाया था कि सवाल ये आया है कि घर चलाना आसान नहीं है, तो हुकूक भी बढ़ जाते हैं। आप उस शख्स को क्या मदनी मशवरा देंगे जो इस डर से निकाह ना करना चाहे कि मैं हुकूक कैसे अदा करूंगा? बाज बीबियां हुई ऐसी सहाबियात जो इसी खौफ से जब इन्होंने सुने ना शोहर के अहकाम, तो वो नहीं करती थी, कहा कि हम शोहर का हक अदा कर नहीं सकती। तो इस तरह मतलब ये कि मगर अब ये कहीं ऐसा ना हो कि घर में कोई खानदान में मसाइल खड़े हुए हों और हम मदनी फूल दें और कुछ मसाइल बढ़ जाएं। इसमें जो मुझे जो आपका वो एक जवाब याद आ रहा है, वो कुछ घरेलू मसाइल से मुतालिक था कि इस तरह की अगर चीज़ें होंगी तो ये घर चलाना कोई नानी माँ का घर नहीं है, कि इसके अंदर बर्दाश्त, सब्र और कुव्वत सब चाहिए होती है। तो अब ज़रा दुनिया भर के लोग काम कर ही रहे होते हैं, तो इसमें यही है कि आदमी हुकूक की अदायगी के साथ साथ अपने आप को गुनाह से बचाने की भी सूरत पैदा करेगा। बाबा जाहिर अब ये कि फिर अगर बीवी बच्चों के हुकूक से डर रहा तो माँ बाप के हुकूक से दस्तबरदार कैसे होगा? वो तो अब माँ बाप तो हो गए, माँ बाप ना थे तो अब पैदा ना होते, तो माँ बाप तो हो गए, अब इनके हुकूक, भाई बहनों के हुकूक, फिर अगर आप मोहल्ले में रहते हैं तो पड़ोसियों के हुकूक, अब कारोबार करते हैं तो अतराफ वालों के हुकूक, ग्राहकों के हुकूक। तो ये क्या, अब हुकूक का तो जाल बिछा हुआ है। यानी आप जंगल में जाकर कयाम करें किसी गार में, तो हो सकता है कोई जानवरों के हुकूक आपको लागू पड़े। तो इसलिए आप दुनिया में पैदा हो गए तो हुकूक ही हुकूक है, तो इसलिए वो दिल बड़ा रखें। और अगर माँ बाप फरमाते हैं तो और कोई शरई आपको रुकावट नहीं है या कोई फिजिकली प्रॉब्लम नहीं है, तो आप शादी कर लें, मशवरा यही है। तो माँ बाप राजी हो जाएंगे ना, इसमें माँ बाप की दुआ होगी तो इंशाअल्लाह घर भी चलेगा। और बाबा हदीस पाक में ये खुलास हदीस का ये मजमून मुझे याद आ रहा है कि निकाह करो कि इससे तुम्हारा आधा दीन महफूज हो जाता है, और आधे के बारे में अल्लाह से डरो। सल्लु अलल हबीब। और बाद सूरतों में तो निकाह फर्ज हो जाता है। अब निकाह फर्ज हो तो हुकूक से डरना, तो फिर ये जो मसला खड़ा हुआ फर्ज तर्क करने का, बाद सूरतों में वाजिब होता है।
یہ سارا دیکھنا ہوگا. اس کی تفصیلات کے لیے مطالعہ کیجیے آپ. عظمت اللہ خان ہے، کہتے ہیں توبہ قبول ہونے کی علامت کیا ہے؟ لکھی تو ہے علامت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کی محبت سے کیسے بچا جائے؟ دنیا کی مذمت کے بارے میں معلومات یعنی کی جائے کہ دنیا، اور پھر یہ کہ دنیا کون سی مذموم ہے، کون سی اچھی ہے، ماں باپ کی خدمت، بال بچوں کی خدمت شریعت کے مطابق جو کچھ ہے. تو یہ دنیا وہ نہیں ہے جس کی مذمت کی جائے. میرا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی نکاح فرمایا، صحابہ کرام بھی نکاح کرتے تھے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ ایسی دنیا ہو. دنیا وہ خراب کہ جو آخرت کو نقصان پہنچائے. ایسی دنیا جس سے آخرت کو نقصان پہنچائے وہ خراب. ورنہ اسی دنیا میں رہ کر تو آخرت بنائی جاتی ہے. اسی دنیا میں رہ کر جنت میں جانے کا سامان ہوتا ہے. تو اس طرح کی دنیا جو جنت کا سامان بنائے، آخرت کی بہتری کا کہ اسباب مہیا کرے، تو یہ دنیا کا معاملہ برا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، ایک عالم سے پوچھا گیا، ایک آدمی توبہ کرے تو کیا اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہوئی؟ فرمایا اس میں حکم تو نہیں دیا جا سکتا، کنفرم نہیں کیا جا سکتا کہ توبہ قبول ہو ہی گئی. البتہ اس کی علامت ہے، اگر اپنے آپ کو آئندہ گناہ سے بچتا دیکھے اور یہ دیکھے کہ دل خوشی سے خالی ہے اور رب تعالی کے سامنے نیک لوگوں کے قریب ہو، بروں سے دور رہے، تھوڑی دنیا کو بہت سمجھے اور آخرت کے بہت عمل کو تھوڑا جانے، یعنی اپنی نیکیوں کو کم جانے. یہ نہ سمجھے کہ میں بہت نیک ہو گیا ہوں. دل ہر وقت اللہ پاک کے فرائض میں منہمک رہے، یعنی لگا رہے. زبان کی حفاظت کرے، ہر وقت غور و فکر کرے، جو گناہ کر چکا اس پر غم و غصہ اور شرمندگی اپنے اندر محسوس کرے، تو سمجھ لو کہ توبہ قبول ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد انس قادری ہے. میں سلسلہ میاں خان سے بول رہا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا ہم جنت میں بھی عبادت کریں گے؟ جنت میں نماز روزے نہیں ہیں، جنت تو اجر کی جگہ ہے. ہاں ذکر یہ غذا ہے جنتیوں کی، وہ لذت کے لیے کریں گے. وہاں بندہ مکلف نہیں ہوگا، پابند نہیں ہوگا، اور سانس کے ذریعے اس کا ذکر جاری رہے گا. کیا بات ہے! جنت میں جائیں گے جب ہی تجربہ ہوگا کہ وہاں کیا کیا ہے. انشاءاللہ آقا کے پیچھے پیچھے ضرور جائیں گے انشاءاللہ. سارے دعوت اسلامی والے انشاءاللہ آقا کے پیچھے پیچھے جائیں گے انشاءاللہ. فرمانا قاری خانے وال شیر سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، احساس کمتری میں لوگ کس طرح مبتلا ہو جاتے ہیں اور احساس کمتری دور کرنے کا کوئی علاج تجویز فرما دیجیے گا. احساس کمتری میں کس طرح بندہ مبتلا ہوتا ہے. اب ظاہر اپنے سے بڑوں کو دیکھے گا، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس چمکیلی کار ہے، میری تو ڈبہ کار ہے، اس کے پاس وہ بڑی فلاں گاڑی ہے اور میرے پاس تو یہ کھچڑ پھچڑ اسکوٹر ہے یا وہ
भाई के। तो इस तरह मतलब बंदा अपने एहसास कमतरी में मुब्तला हुआ, तो अपने ऊपर वालों को देखने के बजाय नीचे वालों को देखे, खचड़ पचड़ तो है यार, इसके पास तो सड़ी हुई साइकिल है यार, ये बेचारा घसीट खच 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 बोल रही है। तो अपने नीचे देखेगा ना तो मतलब ये देखे बचेगा, वरना ऊपर देखने वाला बच नहीं सकता। और आजकल आम तौर पे लोग ऊपर देखते हैं कि ये इतना बढ़ गया, मैं पीछे रह गया। हाँ, नेकियों में अलग बात है, नेकियों में अपने से ऊपर को देखे कि ये माशाअल्लाह बड़ा नेकियां कर रहा है, अब मैं भी रेस लगाऊं और मैं भी नेकियां करूं, ऐसे भले बढ़ जाऊं। तो मुसाबकत इसको बोलते हैं। तो नेकियों में बढ़ना अच्छा है, मगर दुनिया में बढ़ना और इसके लिए कुड़ना ये अच्छा नहीं है। ये है एहसास कमतरी का एक मतलब, यानी कि हिस्सा जो एहसास कमतरी गालिबन ये पैदा करेगा बंदे में, एहसास कमतरी, एहसास मेहरूबी। तो इन तस्वुरात को छोड़ देगा तो एहसास कमतरी से बच जाएगा कि अल्लाह ने जिस हाल में मुझे रखा है, बस रदी तो बिल्लाह रब्बा व बिल इस्लाम दीना, रदी तो बिल्लाह रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अल्लाह की रिजा, अल्लाह के रब होने पर राजी हूं, इस्लाम के दीन होने पर राजी हूं, और मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राजी हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम ऐसा से कम तरीका जो मेरे करीब आए। तो हम आका के गुलाम हैं, बस इंशाअल्लाह खैर है। वो जो दुनिया तो अभी कट जाएगी इसमें, तो इसमें मतलब वही जो मैंने अर्ज किया ना, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे ना तो अल्लाह करेगा तो ऐसा से कमतरी से बच्चे रहेंगे। हमारा सिलसिला होता है तकरीबन 10:30 बजे मदनी चैनल पर, एक दिन छोड़कर एक दिन। आज नहीं है, कल होगा। कल हम गुजरी हुई कल हमने देखा था हमदर्दी। इसमें अगर हम अब देखते हैं ना तो कई ऐसे लोग होते हैं कि जो औलाद की वजह से दुखी होते हैं। तो ये सिलसिला देख कर शायद उनके दुख हल्के हो जाएं कि यार मेरे पास जो औलाद है ना वो इसके मुकाबले में तो मुझे कम तकलीफ है। तो अगर हम इस तरह ज़्यादा तकालीफ वालों को देखेंगे तो हमें अपनी तकलीफ कम नज़र आएगी। तो ये सिर्फ मालो दौलत में नहीं, शक्ल सूरत में भी है, जिस्मानियत में भी है, कपड़े वगैरह में भी है, बहुत सारी चीज़ों में है कि, और यही मेरा ख्याल है हदीस में ये हमें तरगीब दी गई है कि हम अपने दुनियावी तौर पर नीचे वालों को देखें और दीनी तौर पर हम ऊपर वालों को देखें। तो हमने सुने जैसे फरमाया, तो ये खुश रहने का, एक राहत वाली ज़िंदगी पाने का और एहसास कमतरी से बचने का एक बेहतरीन नुस्खा अमील सुन्नत के ज़रिए हमें अल्हम्दुलिल्लाह पता चला है। अल्लाह करीम उस पर हमें अमल करने का जज्बा भी अता फरमाए। शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैह तलब इल्म के लिए निकले थे। इनके जूते जो थे इनके पास नहीं थे, तो आपको दिल में यूं अगर मैं तो राह खुदा में निकला हूं, मेरे पास जूते भी नहीं है। तो वो कूफे की मस्जिद में दाखिल हुए, तो मस्जिद के दरवाजे पर एक भिखारी बैठा था जिसके दोनों पांव कटे हुए थे। तो ये अंदर जाकर सजदे में गिर गए और अल्लाह की बारगाह में अपने वसवसे दिली की माफी चाहिए कि या अल्लाह, मैं जूतों का गिला कर रहा था और यहां तो बेचारे के पांव ही नहीं है, जूते हो तो भी ये नहीं पहन सकता है ना, पांव ही नहीं। तेरा करम है कि मेरे पांव तो सलामत है। तो यूं मतलब ये नहीं, अपने जूते देखकर परेशानी हुई, लेकिन अपने से नीचे देखा पांव कटे हुए को, तो अब एहसास हुआ कि मैं सही हूं। एक से एक अभी हमारे यहां जैसे खुसूसी आते हैं, तो अब ये गूंगे बहरे ये खुसूसी कहलाते हैं, नाबीने खुसूसी कहलाते हैं। तो अब इनमें भी एहसास कमतरी होता होगा कि मैं गूंगा बहरा हूं, वो सोचता हूं मैं नाबीना वो देख नहीं सकता। अच्छा, अब इनको मतलब यूं जहन बनाना चाहिए कि इन्हीं में बाद हमारे पास खुसूसी ऐसे भी हैं कि जो बेचारे नाबीना भी हैं और खुद ही गूंगे बहरे भी हैं। एक तो गूंगा बहरा है लेकिन आंखें उसकी हैं, देख रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। और ये बेचारा नाबीना देख भी नहीं सकता, बोल और सुन तो नहीं सकता। इसलिए जो खाली नाबीना है तड़ाक पड़ाक बोल रहा होता है, बहुत ज़हीन होता है। लेकिन इसको देखे कि ये बेचारा नाबीना होने के साथ साथ गूंगा बहरा भी है, तो मैं इससे इन मानों कर मेरे पर शुक्र लाजिम है कि इस आफत से मैं बचा हुआ हूं।
फिर अगर अब बोलोगे ये बेचारा किसको देखे, ये गूंगा बहरा और नाबीना, ये दूल्हे लंगड़ों को देखे, यार चल तो लेता हूं किसी का सहारा लेकर या असा का सहारा लेकर, बल्कि बाज नाबीना बगैर असा के मेरे जगह चलते हैं तो तेज होते हैं, इतना अंदाजा होता है इनको, ये चल रहे होते हैं। तो ये क्या, ये बेचारे इसकी टांग भी कटे हुए हैं। फिर ये कि सबसे बड़ी नेमत हमको हासिल है ईमान, इसके मुकाबले में कोई नेमत ही नहीं है। तो ये इस तरह का शख्स ये देखे कि अल्लाह का करम है कि मैं तो ईमान से माला माल हूं। जो गैर मुस्लिम है उसकी आंखें हैं तो क्या हुआ, उसके ज़ाहिरी तौर पर कान और जबान सुन रहे तो क्या हुआ, ईमान जो नहीं है उसके पास, सबसे बड़ी दौलत तो ईमान है जो जन्नत में ले जाएगा। और जिसके बाद ईमान नहीं हो, चाहे दुनिया में कुछ भी हो, बहुत बड़ा पहलवान हो, बहुत बड़ा मालदार हो, लेकिन हमेशा हमेशा दोज़ख में रहेगा अगर कुफ्र पर मर गया। तो अल्लाह की रहमत है कि कुफ्र की बीमारी और कुफ्र के ऐब से अल्लाह ने मुझे पाक रखा है। ये मकाम शुक्र है, जितना शुक्र अदा करें उतना कम है, काश हम समझें। बरेला शरीफ कश्मीर, माशाअल्लाह, खुश आमदीद। बरीला, अच्छा अडेर, अच्छा है तो रा इसमें, चलो बड़ेला, बड़ीला, अच्छा आपका इलाका है बड़ीला शरीफ कश्मीर, तो आज पता चला कश्मीरी है। अच्छा, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। वो सोशल मीडिया का एक सवाल है, मेरे दोस्त अपने माँ बाप को गालियां देते हैं, कैसे समझाएं? ये तो ऐसी बात है कि थोड़ा भी शऊर हो तो आदमी समझ ले। मैं वो भी समझता मैं यार कर गलत रहा हूं, माँ बाप को गाली देना वो क्या ऐसे गाली देना एक गुनाह का काम है। किसी मुसलमान को गाली दी, अब माँ बाप को, ये तो कितना बड़ा गुनाह होगा और कितनी दिलाजारी होती होगी माँ बाप की। ऐसा माँ बाप ने क्या कर दिया कि ये माँ बाप को बुरा भला कहते हैं? मतलब खाली इस वजह से कि माँ बाप ने हमारे लिए कोई दौलत नहीं छोड़ी, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए घर नहीं बनाया, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कोई कारोबार सेट नहीं किया, या हमारे माँ बाप हमें खर्ची नहीं देते, क्या ये वो वजूहत हैं जिसकी वजह से आदमी माँ बाप को बुरा भला कहेगा? बाबा और भी वजूहत होती होंगी, बाज़ औक़ात माँ बाप में भी अखलाक की कमजोरियां बहुत होती हैं, लेकिन ये कि फिर भी माँ बाप को गाली देना कोई तुक नहीं है। तौबा करें, इनका पांव पकड़ के माफी मांगे, इनको राजी करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। समुंदरी गुंबद रिसाला मकतबतुल मदीना का, उसमें माँ बाप की अहमियत, माँ बाप की फरमाबरदारी के फजाइल और माँ बाप का दिल दुखाने सताने के अज़ाबात का तज़किरा है। तो आप ये रिसाला हासिल करें, उसमें से कुछ रिवायतें हिकायतें पढ़ के उसको सुनाएं और ऐसों को समझाएं। देखो आप आज नहीं तो कल मौत तो आनी है, बच के जाओगे कहां? तौबा कर लो, माफी मांग लो, पांव पकड़ के इनको राजी कर लो, सारे ही राजी कर लो। ये नहीं कि वो जो गालियां दे वही राजी करे। जिसने भी माँ बाप का दिल दुखाया, नाफरमानी की, नहीं की, तब भी राजी करे। हो सकता है कोई ऐसी बात हो गई हो जो इनके दिल में बैठ गई हो कि मेरे बेटे ने ये मेरे साथ सलूक अच्छा नहीं किया, तो राजी कर लो माँ बाप को, फोन कर लो, अब्बी से फोन कर लो, राजी कर लो। रमजान शरीफ का महीना है, अब बोलो घर जाऊंगा तो फिर मनाऊंगा, अब तो कम्युनिकेशन आसान है, पहले मुश्किल होता था। फोन किया, तरकीब बन गई। अमी मैं एहतिकाफ में हूं और हमको ये बताया गया है एहतिकाफ में, तो इसलिए मैंने आपको फोन किया कि कोई बात अगर आपको मेरी बुरी लग गई हो तो मेहरबानी करके मुझे माफ कर दीजिए, नहीं मुझे माफ कर दीजिए, नहीं मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह मतलब थोड़ी मदनी जिद करके इनको राजी कर लें। अब्बू के साथ भी इस तरह कर लें, बड़े भाई बहनों के साथ भी इसी तरह कर लें, बल्कि छोटे बाप के होकर छोटे भाई बहनों के साथ भी कर लें। सबको राजी कर लें, दोस्तों को भी राजी कर लें। क्या पता है कौन दिल में लेके बैठ जाए और उसका वाकई हमारा ही कसूर हो, हम दिल दुखा चुके हों और इस वजह से क़यामत के दिन हम फंस जाए।
जन्नत में जाने से रोक दिया जाए, वो दोजख का रास्ता दिखा दिया जाए, क्या करेंगे? मुसलमान का दिल दुखाना बहुत 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 ही मतलब बड़ा मामला है और सख्त गुनाह है, कबीरा गुनाह है, मुसलमान की दिल आजारी। और ये बाजों का हम जिसको मामूली बात समझ रहे होते हैं ना, और वो दिल आजारी हो चुकी होती है उसकी, वो उसके लिए बहुत सख्त होती है। जैसे किसी के ऐब पर हम सिर्फ मुस्कुराए, वाकई बहुत मामूली बात है, लेकिन उसके दिल पे एकदम तीर चल जाएगा। हमारा मुस्कुराना कहीं हमें दोजख में न डाल दे, कि हर सूरत में मुस्कुराना तो सुन्नत नहीं है ना, मुस्कुराने के मौके होते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। वुजू किया, नमाज पढ़ ली, बाद में देखा कि पाँव का कुछ हिस्सा खुश्क रह गया है, तो अब क्या करें? वही हिस्सा धो ले। नमाज अगर पढ़ ली है तो दोहरानी पड़ेगी, दोबारा वो हिस्सा धोकर। मेरा नाम मोहम्मद असलम जावेद है। मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ और मैं इराक से बात कर रहा हूँ, कुर्दिस्तान के इलाका इरबिल से। 2 साल से मैं यहाँ पे आया हूँ और वहाँ यहाँ पे मुझे मदनी चैनल नहीं मिल रहा था, तो मैं तकरीबन 1.5 साल वैसे ही गुजारा किया। तो 6 महीने से मैं इंतजार कर रहा था कैसे कैसे मुझे मदनी चैनल मिल जाए, तो फिर नहीं मिला। 3 महीने से मैं 2-3 ऐसी डिवाइसेस लेके आया लेकिन नहीं मिला। अभी रमजान शरीफ के तीसरे महीने में मुझे ना वो तीसरे रमजान में ना वो मदनी चैनल मिल गया। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे मदनी चैनल मिल गया, और मैं दावत इस्लामी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये नशरियात शुरू की, और मुझे बहुत खुशी और मेरी बहुत इस्लाह हो रही है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मदनी चैनल वालों का। और मैं अमीर अहले सुन्नत से ये उम्मीद करता हूँ और मैं अपने दिल में ये तवक्को करता हूँ कि हमें इसमें से और ज्यादा इस्लाह मिलेगी। मेरा ये सवाल है कि मैंने एक हदीस मुबारक सुनी है कि जिसके सीने में एक राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा वो दोज़ख में नहीं जाएगा, और जिसके सीने में एक राई के दाने के बराबर गुरूर तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो मैंने ये मसला पूछना था कि एक बंदा उसमें गुरूर तकब्बुर भी है और ईमान भी है, तो इसके बारे में रहनुमाई फरमा दें कि ज़ाहिर गुरूर तकब्बुर वाला जन्नत में नहीं जा सकता, और जो ईमान वाला है जिसके सीने में एक राई के दाने के बराबर ईमान है वो दोज़ख में नहीं जाएगा। तो एक बंदा उसमें ईमान भी है और गुरूर भी है, तो इसके बारे में रहनुमाई फरमा दीजिए। शराब हदीस शरीफ की असल में ये जो ईमान लेके चला गया दुनिया से, जिसका ईमान सलामत रहा, तो अपने गुनाहों की अगर उसे सज़ा मिली, अल्लाह ताला महफूज रखे, तो भी बिल आखिर उसका ठिकाना जन्नत है। ये जो है वो अक़ीदा अहले सुन्नत का है। अब रहा गुनाह, तो बहुत सारे गुनाह हैं, जैसे चुगली करने वाले के बारे में भी ये बयान किया गया कि वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, दीगर अफराद के बारे में भी बयान किया गया। तो इसकी उलमा ने मुख्तलिफ तौजीहात, मुख्तलिफ शुरूहात बयान की हैं। इसमें से एक ये है कि इब्तिदाअन उसे जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा, अपने गुनाहों की सज़ा भुगतने के बाद वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। और बहुत दफ़ा ये होता है कि गुनाह जो है ये कुफ्र के कासिद होते हैं, तो ये गुनाह बसा औकात बंदे को कुफ्र तक ले जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो नाउज़ुबिल्लाह इन गुनाहों की वजह से ईमान ज़ाया हो जाए। अगर ईमान ज़ाया हो गया तो फिर बंदा जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, फिर हमेशा हमेशा जहन्नम के अंदर रहना होगा। तो ये तहदीद के लिए, डराने के लिए इस तरह की रिवायतें होती हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ ना फरमाया तो फिर वो इब्तिदाअन जन्नत में दाखिल नहीं होगा, अपनी सज़ा की, अपने गुनाह की सज़ा भुगतेगा, फिर उसके बाद ईमान के सबब जन्नत में दाखिल किया जाएगा। सल्लु अलल हबीब। सवाल ये आया है कि क्या इस्लाम औरतों को ही सब्र का हुक्म देता है, चाहे उन पर कितना ही जुल्म हो जाए? एक कोई बेचारी दिल जली ईसाई बहन होगी, नाम किसी आदमी का लिखा है लेकिन हो सकता है। तो ये सब्र तो हर मुसलमान को कर रहा है, चाहे मियाँ हो, चाहे बीवी हो, अम्मी हो, अब्बू हो, कुछ भी ना हो, कमारा हो। जब मुसीबत आए तो सभी को सब्र कर रहा है। अगर बीवी को जुल्म का निशाना बनाया जाता है शोहर की तरफ से या बहू को सास की तरफ से बिलफर्ज, तो
फिर भी बहू और बीवी को ज़ाहिर सब्र तो करना है ना, ये तो कुरान का हुक्म है सब्र करने का। तो इसलिए वो सब्र करेंगे तो अज्र मिलेगा, सवाब मिलेगा। सब्र जन्नत का खजाना है और सब्र करने वालों के लिए तो बेहिसाब जन्नत में दाखिले की भी इशारतें हैं। अब ये कि इसमें चिढ़ के कहना क्या औरत ही सब्र करे, जन्नत में जाना है तो सब्र करो, नहीं जाना है तो फिर किसको नहीं जाना, सारे सभी को जाना है जन्नत में। सब्र तो करना ही करना है, इसके बगैर चारा नहीं। बेसब्री से तो फिर और मसाइल खड़े हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। सब्र करने की बरकत से हो सकता है कि लड़ाई झगड़े ठंडे हों। अब ये बात लोग कहते हैं हाँ हमने तो सब्र किया है, औरतें भी कहती होंगी हमने तो सब्र किया है, और ये हकीकत में सब्र नहीं किया होता। बहुत बड़बड़ाहट करके, बहुत मगजमारी करके, सबको गिले शिकवे सुना के फिर मतलब ये कि जब थक गए तो अब सब्र किया है। हाँ जी हमने तो सब्र किया है। ये सब सब्र अव्वल सदमे में होता है, जैसे ही सदमा पहुंचा जबान बंद हो गई। अब किसी को बिला जरूरत उगल दिया तो अब वो पहले सदमे पर सब्र करना तो नहीं हुआ। हदीस पाक में तो यहां तक है कि सब्र अव्वल सदमे पर, पहले सदमे पर होता है कि बाद में तो सब्र आ ही जाता है। तो बाद में अब चुप हो गए थक हार कर, तो सब्र तो आ ही गया। तो वो फजीलत उसी सूरत में कि बस वो किसी को भी बिला जरूरत इसका तस्करा ना करे। फरमाइए सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माँ बाप से माफी मांगे लेकिन वो राजी ना हो तो अब क्या करें? आखिरी सांस तक उनको राजी करने के लिए जिद्दोजहद करता रहे, दुआ भी करता रहे, सोर्स भी लगाए। ऐसी यानी कि जो खानदान के बुजुर्ग होते हैं जैसे कि आप राजी कर दो, जबकि इसकी वजह से कोई फितना ना होता हो कि माँ बाप की ओर घूमे, इनको क्यों बोलकर आए घर की बात, ऐसा ना हो। तो ये सब हिकमत अमली से होगा। माफ करते होगा नहीं, वरना मैं यूं कर दूंगा वो कर दूंगा, इस तरह नहीं। रो रो कर, कदम पकड़ कर, हाथ जोड़ कर, खिदमत करके, पैसों का ढेर करके, ये जिस तरह भी मुमकिन हो इनको राजी करें। क्योंकि बाद बात ये होता है कि माँ बाप पैसे मांगते तो औलाद नहीं देती, बीमार है तो दवा नहीं देते, फिर ज़ाहिर है कि ये नाराज तो होंगे ना। इनके लिए खजाने का मुंह खोलें अपना, इन्हीं के बरकत से तो आप चल रहे। इन्होंने तो आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया। आप बोलते हैं कि मुझे बोलना आ गया, मैं कमाना सीख गया हूं। अब्बू ने तो उंगली पकड़ के आपको धंधे पे लगाया था। इसलिए वो इनका माँ बाप के मतलब इन्हें हुकूक से जीते जी बंदा सुबुक दोष हो नहीं सकता, फारिग हो नहीं सकता। इतने इनके एहसानात हैं, इतने एहसानात हैं, इतने एहसानात हैं कि बस अल्लाह हमको समझ अता करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। शौकत अली अत्तारी, गुलाची डिस्ट्रिक्ट बदीन सिंध से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा मदनी मुन्ना है जिसका नाम मोहम्मद अहमद रखा है और पुकारने के लिए अब्दुल कादिर, उसको आपका मुरीद बनाना है तो बराह करम अपनी मुरीदी में कबूल फरमा लीजिए। कबिल तू, मैंने इनको सिलसिला आलिया कादिरिया रज़िया में मोहम्मद अहमद को कबूल किया। जिस दिन गौसे आदम रहमतुल्लाही ताला अलैह की विलादत हुई उस दिन आप रहमतुल्लाही ताला अलैह के वतन जीलान शरीफ में 1100 बच्चे पैदा हुए। वो सब के सब लड़के थे और सब अल्लाह के वली बने। जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। मीठे मीठे इस्लामी भाई, मदनी चैनल के नादीन, आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के हादरीन जो वतन अजीज़ के मुख्तलिफ शहरों से आए हैं और साथ बाज़ मुख्तलिफ ममालिक से भी आने वाले आशिकान रसूल, इसी तरह एक माह के एतकाफ़ के ताल्लुक़ से आने वाले आशिकान रसूल सरदाराबाद में जो इज्तिमाई तौर पर जमा हैं, लैया, डेरा गाजी खान, मदीनातुल औलिया मुल्तान शरीफ, कश्मीर, मदनी सहरा, KPK,
خانپور وغیرہ میں جو عاشقان رسول اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شریک ہیں، آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں۔ امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے، اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت فرمائیں مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے، انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں، سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے بازے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک جناب شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وہ ماشاءاللہ کردستان والے نے تھوڑی توجہ لی تھی کہ کتنا ان کو جذبہ تھا، ڈھونڈ کے وہ آخر مدنی چینل ڈھونڈ لیا، ہوتا ڈھونڈنے سے کیا نہیں ملتا۔ ماشاءاللہ تو ان کو مطلب میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ ان کو دین کا درد ہے، جذبہ ہے، مدنی چینل کے ذریعے بھی اصلاح پذیر ہو رہے ہیں۔ تو اب یہ کہ اپنے لیے جو بات پسند کرے وہ دوسروں کو بھی پسند کرنی چاہیے۔ تو اس لیے آپ وہاں جو بھی اپنے پاکستانی، ہندوستانی یا دنیا بھر میں اردو جہاں جہاں سمجھی جاتی ہے وہاں کے لوگوں ان میں بھی اب انفرادی کوشش کر کے مدنی چینل لگوائیے، یہ بھی کار ثواب ہے۔ اور خود کرد کے جو اصل باشندے ہوتے ہیں نا یہ وہاں عربی بولتے ہیں، لیکن جب یہ ہمارے اسلامی بھائی جاتے ہیں نا بغداد شریف 11ویں شریف میں، تو میرے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوا ہے اسلامی بھائیوں کا کہ وہ بولتے ہیں کہ کرد والے دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں، ہم کو ملے یہ کرد کے عرب اور یہ انہوں نے آپ کو سلام بولا، اس طرح کے واقعات ہیں
कि ये मदनी चैनल इनमें भी है। अब ये उर्दू नहीं समझते, लेकिन बहरहाल अभी कभी आ गया होगा, लग गया होगा, तो देखा होगा, तो इनको मजा आया होगा। ये कोई कोई अरब और भी मिले मुझे कि जो मतलब ये नहीं कि ये मदनी चैनल बोलते हम देखते हैं, मतलब वो अपने हिसाब से जिस तरह को मजा आता होगा देखने में। बाज ने कहा था कि हम, वो किसी ने कहा था कि वो भी अरब था, उसने कहा कि मैं रमजान में देखता हूँ। तो मेरा को लगता है रमजान का ये मनाजिर और ये अलविदा के मनाजिर और ये रोना धोना आशिकाने रमजान का, वो ये देखते होंगे, इनको ये समझ में आता होगा। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आपको याद होगा, मैं एक अरब मुल्क से वापस आ रहे थे, अरब मुल्क से हम वापस आ रहे थे, और जब आप इमिग्रेशन पाकिस्तान आते हुए उस अरब मुल्क के एयरपोर्ट पर, जब इमिग्रेशन जहाँ पासपोर्ट पर स्टैम्प लगती है जाने की, जब हम वहाँ पहुँचे तो वो अरबी थे जो वहाँ का अमला था। तो उन्होंने जब पासपोर्ट देखा और तो फिर अमीर सुन्नत को देखा, मैं पीछे था, अमीर सुन्नत को देखा तो कहता सल्लू अलल हबीब, ओ शेख पाकिस्तान, वो करके जो काउंटर छोड़कर बाहर निकले, वो बाहर निकल के वो ना गले वाले मिले, तो वो 2-3 और अरबी जो काउंटर पे थे वो भी सारे आ गए। हाँ तो शेखुल कबीर पाकिस्तान, शेखुल कबीर पाकिस्तान, और ये सब मिलने लगे सल्लू अलल हबीब, सल्लू अलल हबीब। तो उनको लगता है कि वो मदनी चैनल के भी इन्होंने देखा होगा ना, तो इनको सल्लू अलल हबीब वाला वो बहुत समझ में आ गया हो ना, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की अरबी वेबसाइट भी है, तो अरबी वेबसाइट भी दावत इस्लामी की आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं अरब दुनिया में। हमारा सोशल मीडिया पूरा अरब दुनिया में है, यानी अरबी में सोशल मीडिया का एक अपना काम है। तो इस तरह जो भी देख और सुन रहे हैं दुनिया भर में आशिकान रसूल, अरब दुनिया में अगर आप दावत इस्लामी को इस तरह पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी अरब दुनिया में कारोबार के तौर पर या आते जाते हुए राब्ते वास्ते होते हैं, खरीदो फरोख्त के तौर पर अरब दुनिया में रह रहे होते हैं। हमारे कई उर्दू बोलने वाले आशिकान रसूल जो मदनी चैनल भी देख रहे होते हैं, तो उनकी ख़ास मालूमात के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, या दुनिया में जहाँ कहीं भी आप हैं, कि माशाअल्लाह हमारे अरबी वेबसाइट भी है और अरबी सोशल मीडिया हमारा है, जिस पर हमारे मदनी गुलदस्ते और वो डबिंग के साथ, यानी कि अमीर सुन्नत का जो भी उर्दू में मदनी गुलदस्ते होते हैं हम उसकी अरबी डबिंग कराते हैं, और वो जब सुनेंगे तो उनको अरबी होगा लेकिन सामने फेस अमीर अहले सुन्नत का होगा। और इसी तरह मदनी फूल भी होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर रहे होते हैं अरब दुनिया के ताल्लुक से। तो इस्लामी भाइयों को भी इस मामले में मैं दावत देता हूँ कि वो अरब इस्लामी भाइयों तक इस तरह दावत इस्लामी का पैगाम पहुँचाकर इंशाअल्लाह खूब सवाब हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला। ये रोजे में क्रीम लगा सकते हैं, क्रीमें लगा दे लोग चेहरों पर, रोजे पर तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, रोजा तो नहीं टूटेगा। ठीक है, रोजे में क्रीम लगा सकते हैं। ये फ्रॉड के जरिए बाज एजेंट होते हैं जो बैरून मुल्क का सफ़र करवाते हैं और फ्रॉड करते हैं, पैसे ले लेते हैं और सफ़र तो नहीं कराते, या बाज़ का सफ़र कराते तो वो उनकी जानों पर आ पड़ती है। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या फरमाते हैं? सर एक बहुत बड़ा गुनाह का काम करते हैं, लोगों को हलाकत में डाल देते हैं। कई बेचारे इसमें मर जाते हैं, जेलों में पड़े होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता, घर वाले या इंतजार कर रहे होते हैं कि वो पैसे नहीं भेज रहा, हमारा कोई राब्ता नहीं है, खत नहीं लिखता। अब वो क्या खत लिखेगा, क्या पैसे भेजेगा, वो तो पड़ा ही जेल में बेचारा। ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, लेकिन ये कि इस तरह वो अपने वतन में रहकर आदमी रूखी सूखी पर गुजारा करे, माँ बहनों के साथ, बाल बच्चों के साथ, जो रहने का लुत्फ है ना जिंदगी का, वो बाहर दुनिया में नहीं है। खाली पैसे ही तो सब कुछ दिए ना, ये पैसों की खातिर सबको छोड़कर, माँ बाप को, बाल बच्चों को छोड़कर दूर पड़े होते हैं। तो ये फिर गुनाहों के मजीद दरवाजे भी खुलते हैं। इस तरह बाल बच्चों से दूर रहकर जो बंदा रहेगा वो उसका गुनाहों से बचना मुश्किल, यहाँ जो बेचारी है वो गुनाहों में अलग पड़ सकती है। तो इस तरह मतलब ये कि अपना घर वाला अपने भले। चंद दिनों पहले अमीर सुन्नत ने घर के कामकाज के ताल्लुक से मदनी फूल दिए थे कि बाहर जाकर लोग अपने कपड़े भी धोते हैं, तो अपना सारा कामकाज करते हैं, खाना भी पकाते हैं, तो घर में यहाँ रहते हैं वहाँ नहीं कर रहे होते।
اسی طرح کئی ایسے نوجوان ہیں ہمارے جنہیں باہر جانے کی دھن سوار ہوتی ہے کہ ہمیں باہر جانا ہے، یہاں کچھ ہے ہی نہیں. کروڑوں لوگ وطن عزیز میں ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کما رہے ہیں، بلکہ باہر سے آ کر، دوسرے شہروں سے آ کر، بعض ہمارے شہر ہیں، جیسے باب المدینہ کراچی بھی اسی طرح کا ایک شہر ہے، تو لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کما رہے ہیں، مگر وہ کیا محنت کرتے ہیں. اب آپ کو اپنے ملک میں اسپیشلی میں پنجاب اور اس کے اطراف کے بعض ایسے شہر و گاؤں ہیں کہ جن کے اندر لوگ کام نہیں کرتے. شہروں میں بھی یہ حالت ہے، گھر میں اٹھتے نہیں ہیں، جلدی اٹھنا نہیں ہے، اٹھ کر آپ کو تیار گرم گرم پراٹھے چاہیے اور ہر چیز تیار چاہیے، اور نکلنا نہیں ہے گھر سے. 11 12 بجے تک آپ سوتے رہتے ہیں، رات بھر دیر تک جاگتے رہتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب کام کاج نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، کما نہیں رہے تو باہر جانا ہے. اور یہی شخص جو اپنے گھر کے اندر اس قدر عیش کی زندگی گزار ہے، جب باہر جاتا ہے نا تو ہم نے دیکھا ہے کہ 5 بجے صبح کو یہ بسوں کے اندر اپنا سر لٹکا کر یہ جا رہے ہوتے ہیں، کہ آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں، اور یہ تھکے ہارے رات کو 9 بجے 10 بجے گھر میں جاتے ہیں، رات کا کھانا پکاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اپنے کپڑے خود استری کرتے ہیں، صبح کا ناشتہ تیار کرتے ہیں، اپنا باتھ روم خود دھوتے ہیں، اپنے جوتے خود صاف کرتے ہیں، اپنا بستر خود صحیح کرتے ہیں، اپنی چیزوں کو خود درست کرتے ہیں. ایک کمرے کے اندر 10 15 20 لوگ رہتے ہیں. اس طرح وہ چھوٹا موٹا کام کر کے اپنا روزگار کما رہے ہوتے ہیں، اور بدن ٹوٹ کر چور ہو چکا ہوتا ہے جب یہ اپنے بستر پر گرتے ہیں، پھر جا کر 2 پیسے کماتے ہیں. میں کہتا ہوں اس کی آدھا اگر انداز اگر آپ کا اپنے وطن عزیز میں ہو جائے نا تو آپ بڑی عزت کی روٹی کماؤ. یاد رکھیے گا کہ باہر کی امیری میں بھی غلامی ہے اور اپنے ملک کی غریبی میں بھی بادشاہت ہے، یہ یاد رکھیے گا. باہر بندہ پیسہ کما لیتا ہے مگر ڈر کے جی رہا ہوتا ہے، اور یہاں پر غریب ہوتا ہے مگر اپنا وطن ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب پر خاص فضل و کرم فرمائے. اس کو کلی اختیارات ہے، جہاں چاہے چومے، جب چاہے کر لے بھیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب انشاءاللہ دعائے افطار.